पंजाब जीके ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗਾ। ਗਿਵਨ ਬਿਲੋ ਆਰ ਦਾ ਨੇਮਸ ਆਫ 4 ਸਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਵੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਸੋ ਵੈਸਟ ਟੂ ਈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣਗੇ? ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਏਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੋਗਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਆਏਗਾ? ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਕਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ ਮੁਕਤਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮੋਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 2 3 4। ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 2 3 4 ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਗਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਆਂਸਰ ਟੂ ਆਵਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ resigned from which Lok Sabha seat and has been elected as the Chief Minister of Punjab? ਸੋ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ। ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਵਾਰ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਸੀਟ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੰਗਰੂਰ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਂਡ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਆਰ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟਾਂ, ਜਾਂ 7 ਹੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂ 7 ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ 7 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇ 13 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਤੇ 6 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ 13 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ 7 ਦੇ 7 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 5 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਪੰਜੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬਾਈ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਲੈਂਥਰੋਪਿਸਟ ਹੈ ਔਰ NGO ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 7 ਦੇ 7 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। Which law has replaced the Right to Service Act? 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ
ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਐਕਟ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਆਫਿਸਰਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ 2019, ਸਟੇਟ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਐਂਡ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਕਟ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। There are 6 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰਾਮਸਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਸਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। There are 6 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਵਾਟ? ਫੋਰੈਸਟ ਰਿਜ਼ਰਵਸ, wetlands, arid zones and bird sanctuaries। ਸੋ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ੈਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬਹੁਤਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫੌਨਾ ਦਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਛੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਦਾ ਫਲੋਰਾ ਐਂਡ ਫੌਨਾ। ਸੋ ਵੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 6 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਾਂਜਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਰੋਪੜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ, ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਿਆਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਦਾ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 6 ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹਰੀਕੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਂਜਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰਨ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨੰਗਲ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਬਿਆਸ ਰਿਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਕੇਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪਾਇਰੇਸੀ ਕੇਸ? ਫਸਟ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪਾਇਰੇਸੀ ਕੇਸ, ਪਹਿਲਾ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪਾਇਰੇਸੀ ਕੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਆਫਟਰ ਗਦਰ ਇੰਸਰਜੈਂਸੀ, ਅਰੈਸਟ ਆਫ revolutionaries after Jallianwala Bagh incident 1919, cases institute against Kirti Kisan movement leaders, cases in which Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev were arrested and hanged। ਸੋ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪਾਇਰੇਸੀ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪਾਇਰੇਸੀ ਕੇਸ, ਨਾਟ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪਾਇਰੇਸੀ ਕੇਸ। ਔਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੀਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਸੋ ਇਹ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀਜ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? 9 ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 42 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਕਰੀਬਨ 130-35 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨੰਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੋਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਟਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਰ ਫਸਟ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। 1915 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 42 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੋਈ 130-35 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਲਾਵਤਨ, ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਫਸਟ ਲਾਹੌਰ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਕੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਏ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰਿਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵਾਸ ਫਾਊਂਡਡ ਬਾਏ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ। ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 40 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੀਡਰ ਚੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਖਲਜੀਜ਼ ਆਏ, ਖਲਜੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਗਲਕ ਆਏ, ਤੁਗਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੈਯਦ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਆਈ ਔਰ ਸੈਯਦ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਚਲਾਈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਹਿਲੋਲ ਲੋਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਖਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੇ he was the last you can say ਲੋਧੀ ਐਮਪਰਰ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਪਾਣੀਪਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਧੀ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। Who among the following Sikh gurus abolished ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ? ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸੰਦ ਸਿਸਟਮ ਕਿਹਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। Who among the following was the first Asian to be elected the chairman of Commonwealth Parliamentarian Executive Forum? ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜੀ, ਹੀ ਵਾਸ ਡਾਕਟਰ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਲਰਾਮ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਫਰਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਟੂ ਬੀ ਦ head of this particular organization, first Asian to be elected chairman of the Commonwealth Parliamentarian Executive Forum। ਮੇਰੀਆਂ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਧਨੀ ਰਾਮ ਚਾਤਰਿਕ, ਇਹ ਪੋਇਟ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਇਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਨੋਵਲਿਸਟ ਸੀਗੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅਭੁੱਲ ਯਾਦਾਂ। When was Punjab annexed by Britishers? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ 1829, 39, 49, 59, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? 1849। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1849 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਬਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਐਬਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਬੈਟਲ ਸੀਗੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਬੈਟਲ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੈਸੇ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਡਿਸਾਈਡਡ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਐਬਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਵੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਸੋ ਟੇਕਨ ਓਵਰ ਬਾਏ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹੀਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜੌਨ ਲਾਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਨੈਕਸਡ ਬਾਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ। ਨੇਮ ਦਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਓਨਲੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਭੂਟਾਨ ਲੱਗੇ, ਭੂਟਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਤਿੱਬਤ ਚਾਈਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦ ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਡਿਊਰੈਂਟ ਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1893 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਾਜ਼ ਪਾਸਡ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ SGPC ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 1920, 21, 23, 25। 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ 15 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਜੁੰਮਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਦਾਸੀ ਸੈਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ? ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹੰਤ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਆਮ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਮੰਥ ਆਫ ਅਕਤੂਬਰ 1920, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1920 ਤਕਰੀਬਨ ਸਤੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਸੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜੁਲਾਈ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ देयर इज नो ऑल इंडिया सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, देयर इज ओनली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिन्हां दा कंट्रोल सिर्फ उस इलाके दे उत्ते है जदों कि ब्रिटिश इंडिया का पंजाब वाला इलाका सीगा, उत्थे जिहड़े गुरुद्वारे सीगे उस इलाके दे विच जिन्ने भी गुरुद्वारे सीगे उन्हां दे उत्ते जिहड़ा सीगा इन्हां दा कंट्रोल बनदा है। बाकी गुरुद्वारियां दे उत्ते SGPC का कंट्रोल नहीं है। सो इस करके बहुत सारी डिमांड हमेशा उठती रही है कि देयर शुड बी ऑल इंडिया सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट होना चाहिए, पर भारत सरकार ने हाले इस दे उत्ते गौर नहीं किया। सो ये तुहानूं मैं दस्सण वास्ते कीता हैगा कि यह पंजाब एक्ट 8 ऑफ 1925 और उहदे विच जिहड़ा सीगा यह एक्ट जिहड़ा सीगा यह पास किया गया सीगा। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिहड़ा सीगा petition to the provincial government relating to Gurdwaras of Punjab. The famous Manikaran Gurdwara is situated on the bank of which river? Manikaran Sahab एक बहुत गुरुद्वारा है, गुरु नानक देव जी नाल संबंधित है यह, जिथे गुरु नानक देव जी गए सीगे। सो यह किहड़ी नदी दे उत्ते सिचुएटेड है? सो सुकरेती, क्योंकि आपां गल करदे आ हिमाचल प्रदेश दी, मणिकरण जिहड़ा है हिमाचल प्रदेश है, रावी, पार्वती ते चक्की, ये चार ऑप्शन है साडे कोल।
ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਬਤੀ ਨਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਕੁੱਲੂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪਾਰਬਤੀ ਨਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਪਾਰਬਤੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਨੀਕਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ। ਐਪਿਕ ਬੁੱਕ ਲੂਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੂਣਾ ਇੱਕ ਐਪਿਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲੌਂਗ ਪੋਇਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਪਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰੇਵਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਪਿਕ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਓਡੀਸੀ, ਹੋਮਰ ਦੀ ਓਡੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਿਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਲੂਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਲੂਣਾ। ਔਰ ਲੂਣਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੂਣਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਪੋਇਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲਾਈਨ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਛੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਉੜਦਾ ਜਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਅੰਸ਼ੂ ਸਿਖਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਪਾਵਾਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੰਛੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਵਿਤਾ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੇਮ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਫॉर योर ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੇ RTI ਪਾਈ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਕੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਨ ਆਫ ਅਬਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੋ ਖੋ ਨਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਰਿਵਰ। ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਰਹੰਦ ਕਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਫਰਟ ਸੀਗਾ ਬਾਏ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫॉर ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਫਰਟ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1882 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਾਸ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਨੋਨ ਐਜ਼। ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਇਹ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਝੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਡੋ ਡੈਮ ਇਹ ਵੀ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰੀਕੇ ਡੈਮ, ਹਰੀਕੇ ਕੋਈ ਡੈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੀਨ ਡੈਮ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਾਧੋਪੁਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੀਨ ਡੈਮ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਝੀਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ।
ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਝੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥੀਨ ਡੈਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ 2 states ਐਂਡ 1 ਡੈਮ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, one of the 5 ਤਖਤ in Sikhism was built by, it was built by ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦੇ 26 ਮਣ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ 2 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਾਹਰ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਵਾਏ ਸੀਗੇ। How many districts were there in Punjab at the time of partition in 1966? 1966 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ JC ਸ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ? JC ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਰੋਪੜ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ। ਸੋ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1966 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਔਰ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰੋਪੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ? 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Hello everyone, we will discuss out the questions of the GS portion from the Saturday mock test। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं कि क्या थे और क्या आंसर्स क्या बनेंगे। सबसे पहले द सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय द वीडी सावरकर, वीर दामोदर सावरकर, जिन्होंने काला पानी की सजा भी काटी थी, इन्होंने कौन सी सीक्रेट सोसाइटी का निर्माण किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास क्लास? अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत की शुरुआत की थी क्लास। वैसे तो आपके पास जो युगांतर समिति है, अनुशालीन समिति है, ये भी सीक्रेट सोसाइटीज ही थी, लेकिन इसके फाउंडर आपके वीर दामोदर सावरकर नहीं थे। ठीक है जी, तो आपको ये क्वेश्चंस याद रखने हैं कि जो वीर सावरकर द्वारा स्थापित की गई थी वो आपके पास क्या है? अभिनव भारत के नाम से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज विच इंडेक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द ग्रोथ ऑफ द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। तो आपके पास देखो सीपीआई और डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन के बारे में बताते हैं। ठीक है, सो आपके पास आईआईपी जो आपके पास होती है, ठीक है, वो आपके पास क्या बताती है? आपको टोटल इकोनॉमी के बारे में बताती है। ठीक है, चलिए विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, प्री इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस दिसंबर 1885 से बनने से पहले जो आपके पास बन गई हो, जैसे कि पुनः सार्वजनिक सभा पहले बनी थी, नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसको तो बल्कि फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि इसी ने आईएनसी का निर्माण करने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया था। इंडियन नेशनल एसोसिएशन ये भी आपके पास बाद में बनी है। ठीक है, सो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी जो है ये बाद में बनी है। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके फाउंडर थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी ये कांग्रेस से पहले नहीं बनी है, कांग्रेस के बाद बनी है। ठीक है, चले जी, हु पेंड द फॉलोइंग लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। ठीक है, बहुत फेमस सॉन्ग है,
कई फिल्मों में भी दर्शाया गया है। तो इसके जो एक्चुअल राइटर थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और एक इनकी लाइन भी याद रखना कि इन्होंने एक बार कहा था कि मैं 100 जन्म लेना चाहता हूँ और मैं 100 के 100 बार भारत माता पर कुर्बान होना चाहता हूँ। तो राम प्रसाद बिस्मिल 100 जन्म इसीलिए लेना चाहते थे कि वो 100 के 100 बार कुर्बान हो सके, तो इसीलिए उन्होंने ये लाइनें भी लिखी थी कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, ठीक है। चलिए जी, which one of the following movement has contributed to split of the Indian National Congress resulting in the emergence of moderate and extremist? आपके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट विंग जो बन रहे हैं उसके बनने के पीछे कौन सा इवेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था? तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी मूवमेंट। 1906 के 1905 1906 में जो स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है उसकी वजह से आपके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में गैप आता है। और इससे पहले जो कारण था वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है उसी के बाद आप स्वदेशी का भी कॉल ले लेते हो, ठीक है। और रिजल्ट ये निकलता है कि आपके एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स दो विंग्स में डिवाइडेड हो जाते हैं, ठीक है। नरम दल, गरम दल, ठीक है। मॉडरेट्स में थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब, उसमें थे। एक्सट्रीमिस्ट विंग में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एंड योर बाल गंगाधर तिलक और बिंदु घोष, ये उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक्सट्रीमिस्ट विंग से। मूविंग फर्दर, who among the following was the leader of the revolt of 1857 from at बरेली? तो खान बहादुर, बेसिकली नोन एज बकत खान, ठीक है। ये बरेली से आपके फॉट कर रहे हैं, ठीक है। कुंवर सिंह अमर सिंह बिहार से थे, आरा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला शाह अवध एंड रोहिलखंड, ठीक है। विजरिस कादिर, बिजरिस कादिर है बेसिकली क्लास, तो ये थे आपके अवध, लखनऊ, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा रिवोल्ट कहां से लीड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए उसके बाद, which article of the Indian Constitution empowers the Parliament to legislate on the subject of state list? वो कहता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहां पर आपके भारत का संविधान पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी क्या कर सकता है? काम कर सकता है, ठीक है। स्टेट लिस्ट के ऊपर भी वो काम कर सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 115, जहां पर वो स्टेट लिस्ट के ऊपर भी क्या कर सकता है? काम कर सकता है। चलिए जी, द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 148 है आपका, जहां से आप कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को देखते हो। ये संवैधानिक तौर पर लिखा गया, ये किसी एक्ट से या किसी कैबिनेट रेजोल्यूशन से नहीं बनाया गया, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि भारत में वो ऑडिटर जनरल का रोल प्ले करता है, कंट्रोलर का नहीं करता। यानी किसी तरीके की ग्रांट लेने के लिए पार्लियामेंट ऑथोराइज्ड है, दिस पर्सन इज नॉट ऑथोराइज्ड, ठीक है। इसके सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट? कि दुनिया में कितनी ग्लोबली तरक्की हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड बैंक इस रिपोर्ट को निकालता है आपके पास, ठीक है। द टेन्योर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज 6 ईयर, ठीक है। 6 साल का कार्यकाल है, ठीक है। नॉर्मली हम भारत में देखते हैं सबका कार्यकाल 5 साल का है। आपके और कैग का, यूपीएससी चेयरमैन का, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर का, इनका सबका कार्यकाल 6-6 साल का है क्लास, ठीक है। चलिए, who among the following headed the advisory committee on fundamental rights, minority committees, ठीक है, tribal and excluded areas of the committee under the constitution assembly? यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, अल्पसंख्यक जातियों के अधिकार हैं, ट्राइबल अफेयर्स हैं, इनके कमिटीज को कौन हेड कर रहे थे उस समय? वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी आपकी कौन सी कही जाती है? जो जीडीपी आपकी करंट प्राइसेस के ऊपर चल रही है, आज के प्राइसेस के ऊपर जब आप जीडीपी को कैलकुलेट करते हो उसको आप नॉमिनल जीडीपी बोल देते हो। चलिए, इन आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? तो 1949 के अंदर आपका आरबीआई नेशनलाइज्ड होता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये भारत का पहला बैंक था जो नेशनलाइज्ड किया जाता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस। सेकंड वाज एसबीआई ऑन द 1st of April 1955। चलिए, द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई सिचुएटेड इन द फॉलोइंग सिटीज, दैट इज इन द मुंबई। जहां पर इसका हेडक्वार्टर सेटअप किया गया है वो आपकी जगह कौन सी है? मुंबई है। आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड एज कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। दो तरह की इन्फ्लेशन होती है, एक हेडलाइन इन्फ्लेशन यानी रोजमर्रा में जो आप सुनते हो आज महंगाई हो गई, महंगाई हो गई, एक होती है एक्चुअल में कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन होती है जब आपकी फूड और एनर्जी सेक्टर के प्राइसेस को हम कंसिडर नहीं करते, इनके प्राइसेस रोज बदलते हैं, है ना। हम आज आलू खरीदने जाएंगे तो भी रेट पूछेंगे, शाम को लेने जाएंगे तो भी रेट पूछते हैं।
कल लेने जाएंगे तो भी रेट पूछेंगे, क्योंकि इनके रेट फ्लक्चुएट करते हैं। लेकिन हम कोई कपड़ा खरीदने गए, मैं भी जीन्स खरीदने गया और शाम को खरीदने जाऊंगा तो भी रेट सेम होगा, ऑलमोस्ट कल परसों भी रेट सेम होगा, उसमें चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है। तो फूड और एनर्जी सेक्टर जिसके रेट बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करते हैं, उसके बेसिस पर हम इन्फ्लेशन को काउंट नहीं करते, अदरवाइज डाटा बहुत डिस्टोर्ट हो जाता है, इसलिए ये दो चीजें आपकी कोर इन्फ्लेशन में नहीं आती है। Which year was the planning commission was established? 1950 के अंदर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में इसको तैयार किया जाता है, जिसे पंचवर्षीय योजनाएं कही जाती थी। आज की डेट में इसको हम क्या बोलते हैं? नीति आयोग, ठीक है। नरेंद्र मोदी ने इसका नाम चेंज किया था बाद में। चलिए जी, सेकंड है नीति आयोग वाइस चेयरमैन विल गेट अ कैबिनेट मिनिस्टर रैंक एट पे, कि जो नीति आयोग का चेयरमैन है वो तो प्राइम मिनिस्टर है, जो वाइस चेयरमैन है वो किस रैंक का होता है? वो कैबिनेट रैंक का हो जाता है, और उसको पे भी वैसी ही मिलती है, ठीक है। मेंबर्स ऑफ नीति आयोग विल बी ऑफ रैंक एंड स्टेटस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एट द सेंटर, लेकिन जो उसके मेंबर्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ जो स्टेट है उस सेंटर के, उसके रैंक के ऊपर जाते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है क्लास। वाइस चेयरमैन कैबिनेट रैंक जैसा हो जाता है, मेंबर्स कैसे हो जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के रैंक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। Further, which scheme of the central government aims to provide employment opportunities to educate youth who are unemployed? देखो क्लास बड़ा आसान क्वेश्चन है, रोजगार से ही वर्ड क्लियर हो जाता है, ऑप्शंस बहुत आसान थे, जन धन, मुद्रा, रोजगार से वर्ड क्लियर है कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर बात हो रही है। फिर आपके पास है कि माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए आपने कौन सी अफोर्डेबल क्रेडिट लिमिट बनाई हुई है? तो मुद्रा लोन है आपके पास, 3 तरीके के लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर एंड तरुण, ठीक है। 3 तरीके के लोन्स दिए जाते हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग अमाउंट का लोन इशू होता है, ठीक है। दैट इज मुद्रा। तो जो याद रखना है, शिशु, किशोर और तरुण, 3 कैटेगरी में आपको लोन दिया जाता है। फर्दर है आपके पास कि विच गवर्नमेंट स्कीम इज टू एंश्योर द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्ट टू द सिटीजन फ्रॉम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फ्रॉम द एक्सीडेंट्स, इलनेस एंड डिसीज, ठीक है। मतलब जो लोग भारत में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब उनको सोशल सिक्योरिटी एक तरह की देनी है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जहां पर आपको प्रोविडेंट फंड्स, पीएफ, मेडिकल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए आपके पास स्कीम कौन सी लागू की गई है? प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर थी कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए, थोड़ा सरकार डालेगी, कुछ समय के बाद आपको शॉर्ट आफ्टर योर रिटायरमेंट, आफ्टर 60 इयर्स ऑफ अटेनिंग एज, आपको शॉर्ट कुछ अमाउंट की आपको क्या दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी। चलिए, इंडिया लिफ्टेड द अंडर 19 वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग श्रीलंका इन द 9 विकेट ऑन December 31 दुबई, ठीक है। उन आपका दुबई के अंदर जो अभी रिसेंट अंडर 19 का वर्ल्ड कप हुआ है, इंडिया अगेन इसका विनर रहा है। तो यहां पे फाइनल्स में इंडिया ने हराया किसको है? श्रीलंका को हराया, ठीक है। विच ग्लोबल कंपनी क्रिएटेड हिस्ट्री ऑन द January 3 बाय मेकिंग द फर्स्ट कंपनी टू हिट द 3 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट वैल्यू? तो एप्पल ये कंपनी है, ठीक है। फर्स्ट 1 ट्रिलियन, 2 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन तीनों को टच करने वाली पहली कंपनी आपकी एप्पल ही बनी है। बाकी भी आपकी 2 ट्रिलियन से ऊपर है फिलहाल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये भी बहुत जल्दी 3 ट्रिलियन को टच कर जाएंगी, ठीक है। बट फर्स्ट हमेशा फर्स्ट रहता है, तो एप्पल इज द फर्स्ट वन। फर्दर है यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट धर्मेंद्र प्रधान ने January 3 लॉन्च नीट 3.0। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस नीट? नीट का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला है टू प्रोवाइड द बेस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन इन द एजुकेशन सेक्टर, कि एजुकेशन सेक्टर को टेक्नोलॉजिकली सॉल्यूशंस देना कि कैसे हम इसको टेक के थ्रू और एडवांस कर सकते हैं। टू एनहेंस द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ बाय इंप्रूविंग देयर स्किल्स, और यूथ की स्किल्स को ऐसे इंप्रूव करना कि एजुकेशन उसको जॉब पे लेकर जाए, उसके स्किल्स को इंप्रूव करना, ठीक है। टू इंप्रूव इनोवेशन एंड स्टार्टअप अमंग द यूथ, तो यहाँ स्टार्टअप वाला कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स वाले कैटेगरी में जाता है, तो ए और बी करेक्ट होगा। स्टार्टअप्स के लिए नीट 3.0 काम नहीं करता, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द स्पेशल मिशन फॉर डेवलपिंग द सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। तो इसको नाम क्या दिया गया? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अभी एक रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है, धोलेरा जो कि आपके गुजरात में है, वहां पर एक सेमीकॉन सिटी बनाया जाएगा, सेमीकंडक्टर की डेवलपमेंट के लिए सिटी बनाया जाएगा, गवर्नमेंट ने इसकी अनाउंसमेंट किया, और ओवर द इयर्स ये कम से कम 2 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करेगी आने वाले समय के अंदर, ठीक है। चलिए, डैश हैज बिकेम द फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट इन द कंट्री बाय इंप्लीमेंटिंग द उज्ज्वला स्कीम ऑफ सेंटर एंड गृहिणी स्वनिधि योजना ऑफ द स्टेट। जहां पर उजाला और स्वनिधि योजना ग्रामीण जो है उसको लॉन्च किया गया, वो स्मोक फ्री, यानी सबके सब वहां सिलेंडर पे है, अब वो चूल्हा चौका वाला काम नहीं हो रहा है। तो हिमाचल प्रदेश भारत की पहली स्टेट बनी है ऐसी जिसने स्कीम को कंप्लीट कर लिया।
चलिए जी, चाइना रिसेंटली कंडक्टेड सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट एंड एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामैक रनिंग ऑफ इट्स रिकॉर्ड ऑफ 20 मिनट्स. व्हाट इज द पॉपुलर नेम ऑफ दिस प्रोजेक्ट? टोकामैक इज आर्टिफिशियल सन. ठीक है, ये फ्यूजन रिएक्शंस को करवाया जा रहा है इसके ऊपर, और आपके पास इससे बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है. ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल सन है जिसने 20 मिनट के लिए काम किया. ये अपने आप में बहुत बड़ा चीज है. तो टोकामैक का मतलब है आर्टिफिशियल सन. चलिए, India's first open rock museum displaying different types of rocks gathering from the different states has been opened in which place? हमारे पास काफी तरह की रॉक्स होती हैं. क्लास इग्निशियस हैं, सेडिमेंट्री हैं, मेटामॉर्फिक के अंदर बहुत सारी टाइप्स होती हैं. तो उनका डिस्प्ले रखा गया है भारत के हर कोने से लाकर. ये आपके म्यूजियम कहां पर बनाया गया है? हैदराबाद. तो फर्स्ट ओपन स्टोन म्यूजियम है ये आपका हैदराबाद. चलिए, विच स्टेट एंड यूटी सेलिब्रेट लोसार एज इट्स न्यू ईयर फेस्टिवल? जो नया वर्ष आप बनाते हो लोसार के नाम से, ये आपकी कौन सी स्टेट का फेस्टिवल है? दैट इज फ्रॉम द लद्दाख. ठीक है. प्रवासी भारतीय दिवस जो हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये किसके दिन को सेलिब्रेटेड है? महात्मा गांधी. 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से, सत्याग्रह कर कर वहां पर जीत हासिल कर कर. यहां पर उसकी शुरुआत की जाती है एज अ प्रवासी दिवस. 2 साल में एक बार इसको सेलिब्रेट किया जाता है. बहुत समय से ये वाराणसी और इलाहाबाद में हो रहा है. ठीक है, तो भारतीय प्रवासी दिवस. चलिए, विच सिटी ऑफ केरला हैज बिकेम द फर्स्ट सिटी ऑफ इंडिया विद द वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट एज इट्स लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑफ सीरीज बैटरी पावर्ड फुली एसी इलेक्ट्रिक बोट्स इन द सिटी. ठीक है, तो ये सिटी आपका बना है कोची. ठीक है, जहां पर आपको पहली एसी इलेक्ट्रिकल बोट्स बनेंगी. ये मेट्रो का प्रोजेक्ट है, वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट है. एक मेट्रो जो हमारी पुल के ऊपर चलती हैं, ट्रेन के थ्रू चलती हैं, वो एक दूसरी लैंड मेट्रो है. एक वाटर मेट्रो आपकी बनाई गई है. सो वो वाटर मेट्रो आपकी कौन सी कहां पर बनाई गई है? कोची के अंदर बनाई गई. ठीक है, चलिए ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच फॉर दिस. स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे. तो जैसे कि आपको पता है कि ज्ञानम हर बारी आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता है, तो इस बार फिर से हम आपके लिए जो मॉक टेस्ट हुआ है उसी को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन. तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. Use dash view in MS PowerPoint to view the thumbnail of the all slide in the matrix form. अभी थंबनेल क्या होता है? थंबनेल का मतलब होता है जो पहला फ्रंट पेज होता है वो, मतलब जैसे कि आप लोग देखते हैं जैसे हमारा जो मॉक टेस्ट आता है तो उसके ऊपर जो पहला पेज लगा होता है उसको थंबनेल बोलते हैं. तो यहाँ पे पूछा कि मैट्रिक्स फॉर्म में जो कि सभी स्लाइड में आपको लगाना है, तो वो कहाँ पे लगाया जा सकता है? अब जैसे थंबनेल ये ज्ञानम हमने लिख रखा है यहाँ पे, तो इसे भी हम लोग सारी जगह पे कहां पे लगा सकते हैं, ये इसका मतलब है यहाँ पे. अगर मैं बात करता हूं, अब मैं देखता हूं आपके पास, तो सबसे पहले रीडिंग, नॉर्मल, स्लाइड शॉटर या फिर स्लाइड शो. स्लाइड शो तो आपको सामने पता चल रहा है कि कभी आंसर नहीं बनेगा. नॉर्मल कुछ नहीं है, रीडिंग आपके पास व्यू होता है. तो स्लाइड शॉटर व्यू ही आपके पास ऐसा एक व्यू बनेगा जो कि एमएस में मैट्रिक्स फॉर्म में सारे के सारे थंबनेल आपको दिखा देता है. तो आंसर इज सी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन इन एमएस इन विंडोज 7 कंटेन द फ्यूएस्ट फीचर. फ्यूएस्ट का मतलब था कुछ ही फीचर थे. तो ये एक अलग से आपको शायद इसके बारे में बताना हो. होम बेसिक है, प्रोफेशनल है, स्टार्टर है या फिर होम प्रीमियम. अब मैं बताऊं कि होम बेसिक में काफी फीचर थे, प्रोफेशनल तो नाम से ही पता चल रहा है, और होम प्रीमियम में भी काफी फीचर थे. तो इस वजह से आंसर क्या बनेगा? स्टार्टर. स्टार्टर जो था एक तरीके से ना आप बोल सकते हो कि डमी है. स्टार्टर आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या था, एक तरीके से डमी था जो कि स्टार्ट करने के लिए, जैसे कोई भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट आता तो उसका पहले क्या करते हैं, डमी वर्जन हम लोग चेक करते हैं. तो उसी तरीके से ये था जिसमें कि कुछ ही आपके पास क्या थे, जो थे फीचर थे. ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे है. तो आंसर क्या बनेगा? सी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन देखिए. इफ अ रैम हैज 10 एड्रेस बिट लाइन देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम एड्रेसेबल लोकेटेड इन वन इज इन इट. मतलब उसमें कितने मैक्सिमम जो है एड्रेस आपके पास होंगे? तो आपके पास 1023, 1024, 10 या फिर 2048. तो इसका आंसर बनेगा 1024. क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो एड्रेस होता है वो आपके पास पहली बात ओड में तो आता नहीं है. 10 तो अपने आप में बनेगा नहीं, ये तो डबल है, ऐसा नहीं होता है. तो एक केबी में जो होता है 1024 बाइट आपके पास होते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 1024 बाइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, अगला क्वेश्चन देखिए.
each recording surface of the hard disk is divided into the concentric circle and each circle is divided into the segments. These segment are called. अब ये देखो ये बात किसकी कर रहा है, ये हार्ड डिस्क इस तरीके से बात कर रहा है, इस तरीके से अंदर उसको डिवाइड किया जाता है यूं करके। अब हर एक में अगर मैं बात करूं तो यूं करके होता है ना, तो हर एक को डिवाइड किया जाता है कंसेंट्रिक सर्कल में। तो ये पूछा जा रहा है आपके पास कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगा यहाँ पे क्या है, ठीक है। दिस सेगमेंट, इस सेगमेंट को क्या बोला जाता है, आपके पास सेक्टर्स में आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज को आप लोग क्या करते हैं सेक्टर्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ये क्या है अपने आप में सेक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या है अपने आप में सेक्टर्स हैं। ठीक है, होपफुली बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस विच वर्क मोर लाइकली अ फोटोकॉपी मशीन। एक ऐसा डिवाइस जो कि फोटोकॉपी की तरह मशीन करता है। स्कैनर है, ट्रैक बॉल है, जॉयस्टिक है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन तो कभी आंसर नहीं बनेगा, जॉयस्टिक इनपुट के लिए, ट्रैक बॉल इनपुट के लिए, और यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, स्कैनर जो है वो फोटोकॉपी की तरह भी काम करता है। आप में से कई बच्चे इसका यूज करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ वैलिड पैराग्राफ जस्टिफिकेशन ऑफ एमएस पावर पॉइंट। जस्टिफाई टॉप, लेफ्ट और राइट। अब देखिए होता क्या है, अगर मैं बात करता हूं, आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, ठीक है, राइट अलाइनमेंट होता है। ये तो लेफ्ट आ गई, ये राइट आ गई। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है आपके पास इक्वल पेज में, मतलब ठीक है, पूरे का पूरे जस्टिफाई। तो इसका मतलब है ये तीन तो होते हैं, पर कभी भी आपके पास टॉप जो है जस्टिफिकेशन आपके पास नहीं होता है। टॉप जो है आपके पास वैलिड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं होती, तो आंसर इज नो, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एल, इसका कंट्रोल प्लस आर, ठीक है, और ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये है अगला क्वेश्चन, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू। तो इनमें से कौन से तीन मेजर कंपोनेंट है किसी भी कंप्यूटर के। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट रैम, कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट रैम, और कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक यूनिट लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होते हैं वो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड रजिस्टर। रजिस्टर्स क्या होते हैं, अपने आप में मेमोरी होती है। तो कंट्रोल यूनिट होगा तभी भी वो सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल पाएगा। अरिथमेटिक का मतलब है आपके पास जितने भी अरिथमेटिक फंक्शन जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे इससे कर रहे हैं। और रजिस्टर जो होते हैं अपने आप में टाइप की मेमोरी होती है जिसके थ्रू यहाँ पे सारा का सारा काम किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, CD स्टैंड फॉर। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, एंड कैन बी रिटन टू ओनली रिकॉर्डेबल वंस। तो आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। क्योंकि ये CD जो होती है वो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है और उसका एक ही बार यूज किया जा सकता है, बार बार यूज नहीं किया जा सकता। तो आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माउस, ट्रैक बॉल एंड टच पैड आर द एग्जांपल ऑफ डैश डिवाइस। आपके पास स्कैनिंग, पॉइंटिंग, आपके पास पॉइंटिंग, देखिए स्कैनिंग इनपुट है, पॉइंटिंग आउटपुट है, स्कैनिंग आउटपुट है, और पॉइंटिंग आउट इनपुट है। तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्या है तो पॉइंटिंग, बट क्या है इनपुट टाइप के। अब यहाँ पे था आउटपुट था, इसकी वजह से आंसर नहीं बना, ठीक है। तो पॉइंटिंग इनपुट टाइप का ये अपने आप में क्या है कि डिवाइस होता है, ठीक है, इनपुट देने के लिए यूज करते हैं माउस का, ट्रैक बॉल का, टच पैड का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो ये आखिरी क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिख रखा है। ये एक फॉर्मूला दे रखा है एमएस एक्सेल में, जिसका में ये लिख रखा है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट 1 2, यहाँ पे इसका मीनिंग स्केयर होता है सम आपके पास 1 1। तो सबसे पहले ये बोला कि इन दोनों का सम कर दो, इन दोनों का सम करोगे तो वो क्या होगा 2। तो इसका मतलब यहाँ पे भी सम कर दो, तो इसका मतलब बन गया सम यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्केयर करना है वो इस 2 का स्केयर करना है, तो इसका ये जो आपके पास साइन था ना, ये एक
ये जो साइन होता है इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये 1 + 1 कर दिया 2 आ गया, तो 3 का स्क्वायर अगर आप लोग कर देंगे तो वो कितना आएगा 9 आएगा। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आंसर बन जाएगा। आंसर क्या बनेगा सी ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद क्लास। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। हाँ जी, ਆਪਾਂ डिस्कस ਕਰਦੇ हैं कि ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ क्वेश्चंस ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋल्व कर सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन दीप्ति इज, जस्ट अ सेकेंड, दीप्ति इज 9th from the left, Kashish is 13 from the right. They interchange their position. मतलब इथे कशिश, इथे D. ठीक है? Then Dipti becomes 17th from the left. ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈ? Find the new position of Kashish from the right end. कशिश ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ right end ਤੋਂ। देखो जी, इथों ਆਪਾਂ टोटल कर लिए। टोटल ਕੱਢਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 13 प्लस 17 माइनस 1 दैट इज 29। ठीक है जी, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। 29 प्लस 1 माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। 30 माइनस 9 दैट इज 21 फ्रॉम राइट। ठीक है जी, क्लियर? नेक्स्ट, हाँ जी, ऑड वन आउट दसना आपां। मरकरी नाल कुछ गिला नहीं हुंदा, ठीक है, बाकी सारे सरफेस नू वेट कर देंदे है, यह रीजन है। ठीक है, ऑड वन आउट होने च। नेक्स्ट, साइलोजिज्म, ऑल MRW, ऑल ORM, ऑल PR, ओके, यह बन गया। सारे दे सारे P की है, आउल है, तो सारे दे सारे आउल मैन है, तो सारे दे सारे मैन W है। ठीक है जी, फर्स्ट पूछा ऑल W की W किस दे अंडर आ रहे हैं? नहीं, ऑल W आर, सॉरी, ऑल आउल्स आर W, बिल्कुल। ऑल पैरेट्स W दे अंडर है? यस। ऑल पैरेट, सारे दे सारे पैरेट मैन दे अंदर है? यस। तो की कहोगे? डी ऑप्शन। सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ फॉलोज। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग, इथों ही दिख रहे आपां नूं +1 E + 1 F, V + 1 W, E + 1 F, R + 1 S, S T E F, मतलब +1 हो रहा सी। F + 1 G, O + 1 P, R S, W X, A B, R S, D E, G B S C। ठीक है जी, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, डायरेक्शन, डन। Starting from the point P, Sachin towards south, किन्ना 20, then turn left, right इधर, left इधर, किन्ना आएगा 30, then turned left 20। ठीक है जी, then turned left and walk 40, 30 और 10 होर। ठीक जी, और एक पॉइंट Q ते पहुंच गया। पूछा की है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज Q फ्रॉम पॉइंट P। पहला तो देख लिए केड़ी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। केड़ी डायरेक्शन है? नॉर्थ वेस्ट। नहीं, कुछ गड़बड़ होगी। पॉइंट Q फ्रॉम पॉइंट P, सॉरी, पॉइंट P था सी ना, ए वाला नहीं, सॉरी जी, ए वाला नहीं, ए वाले पॉइंट तो पूछे है।
ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਵੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 10 ਆਨਸਰ ਇਜ਼ C ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ P ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ मैं गलती नाल इनू ले लिया ठीक है जी नेक्स्ट देखते हैं हाँ जी क्वेश्चन केड़ा है कोर्स ऑफ एक्शन दा क्वेश्चन है द गवर्नमेंट विल स्लैप illegally enforceable penalties on coal companies defaulting on quality and quantity of coal supplies to bulk consumer especially to the thermal power station क्वेश्चन ठीक है जी हाँ जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਨਰੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਲ enforceable penalties on coal companies on quality and quantity of coal supply to bulk consumers especially to the thermal power suppliers stations हाँ जी की क्या गया the requirement of the coal for thermal power station should be assessed नहीं जी ये तो possible नहीं है ठीक है पहला तो गलत हो गया the coal company should introduce welfare measures for their employees the answer क्या आना चाहिए इसका neither nor हाँ जी क्लियर जी नेक्स्ट देखते हैं अगला की है थोनू की दिता 125 ਦਾ क्यूब दिता मतलब 5 by 5 ਦਾ टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स किन्ने है 125 ਦਾ क्यूब रूट कर दो किन्ना आ जाऊगा 5 n दी वैल्यू की है 5 मतलब अपना जो मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरीके का होगा वन टू थ्री 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ठीक जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗਿਆ how many cubes are painted on one face only one face ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इंटू किन्ने फेस 6 की आंसर आऊगा 54 ठीक हाँ जी एनोलॉजी जेड डिटोरेशन इज रिलेटेड टू रस्ट ठीक है जी देन डिप्रेशन इज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट ठीक जी नेक्स्ट इज रिलेटेड टू पजल्स की क्या गया 6 लोग है ठीक है मैं इतने करने की कोशिश कर रही है 6 लोग है M N O P Q and R इन क्लास ठीक है जी 6 स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट है 1 कंपल्सरी ते 1 ऑप्शनल कौन कौन है P Q ना M N तो M N O P Q ते की आ जाएगा एक तो आ जाऊगा कंपल्सरी ते एक आ जाऊगा ऑप्शनल ठीक है जी कंपल्सरी ते ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट है कंपल्सरी ते ऑप्शनल पीज ऑप्शनल सब्जेक्ट इज जियो ज्योग्राफी ठीक है जी ते पीज ऑप्शनल अच्छा मैं कंपल्सरी च लिखता पी दा ऑप्शनल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी वाइल 3 अदर हैव कंपल्सरी सब्जेक्ट मतलब 3 लोगों का जो ज्योग्राफी है वो एज कंपल्सरी सब्जेक्ट है Q and R है केमिस्ट्री एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट Q ते R द केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है ठीक है जी R कंपल्सरी सब्जेक्ट इज फिजिक्स अगर R द फिजिक्स कंपल्सरी है तो केमिस्ट्री ऑप्शनल हो गया which is optional subject of both O and Q नहीं आर्ट्स कंपल्सरी हाँ बिल्कुल O ते Q दा
O ਤੇ Q ਦਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ। Geography and English are M subject as compulsory and optional respectively. ठीक है, geography M ਦਾ ਤੇ English M ਦਾ optional। ठीक जी, ठीक। Chemistry is ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ। Done। Geography ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ? 3 ਦਾ, ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਸੀ geography? P ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸੀ ਤੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ 3 ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਅੱਗੇ, ਬਾਇਓ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਓਨਲੀ one of them। ਬਾਇਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। The only female student in the group is the one who has geography as optional subject is the, a female है। ठीक है। And English is the compulsory है। एक बार जे चार्ट बन जाए तो आंसर करन च फिर दिक्कत नहीं आती। Who is the female? P female है। Compulsory subject of O ਦਾ compulsory subject geo। ਹਾਂਜੀ, next ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਥੇ 25 ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus 4 ਦਾ ਸਕੁਅਰ is equal to 25। 11 ਦਾ ਸਕੁਅਰ plus 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 265। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ 145 ਕਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। What is the angle between two hands? ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ PS PCL ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਪ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਚ ਵੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 420 ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਘੰਟੇ ਵਾਲੀ ਸੂਈ, ਆਰ ਹੈਂਡ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਿੰਟ। ਜੇ ਮਿੰਟ 5 ਗੁਣਾ ਹੈ ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣੂਗਾ? ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੱਧਾ, that is 10 degree। आंसर is A option। क्लियर जी? हाँ जी। नेक्स्ट देखो, one fine morning after sunrise, Ramesh and Satish were standing in a park। ठीक है जी। Their backs towards each other। One morning, ठीक, shadow ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੈਕ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਫ ਦ ਸ਼ੈਡੋ ਆਫ ਦ ਰਮੇਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੈਫਟ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਬੈਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬੈਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਲਟਾ। ਕਿਆ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? क्या की है? If the shadow of the Ramesh fell exactly to the left hand side of Satish, Satish ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ हैंड ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਤੀਸ਼ ਦਾ ਫੇਸ ਕਿਸ ਵੱਲ ਹੈ? ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਨਾਰਥ ਵੱਲ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਠੀਕ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? 2 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1, 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 1, 4 ਦਾ 6 ਦਾ 7 ਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 8 ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਜ਼ਨ ਮਾਊਂਟੇਨ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਰਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਟਰੀ। क्लियर जी?
हाँ जी, इसी तरीके नाल अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मॉक टेस्ट का कंप्लीट एनालिसिस, जो क्वांट के पार्ट का है वो हम डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, 8 years ago Ravi's mother was 5 times older than her daughter. After 8 years Ravi's mother will be twice older than her daughter. Find the present age of Ravi. तो रवि की एज हमें कैलकुलेट करने। देखो यहाँ क्या बात की गई है, यहाँ 8 years बिफोर और यहाँ आफ्टर 8 years, मतलब प्रेजेंट से 8 साल पहले और आज से 8 साल बाद। ठीक है, देखो पहले रेशियो क्या था आपका 5:1। पहले का रेशियो क्या था, उसने बोला था 5 टाइम्स है और अब 2 टाइम्स। तो आफ्टर 8 years रेशियो क्या है, 2:1। बट इन दोनों में जो गैप बनेगा वो तो 16 years का ही बनेगा, वो 16 ईयर का ही बनेगा। यहां से क्या गैप 16 है, नहीं है। तो इस गैप को आप इक्वल कर सकते हो। क्या करो, देखो पहले ये गैप देखो, ये गैप क्या है 4, ठीक है, और ये गैप क्या है 2, सॉरी ये गैप क्या है 1, 2 नहीं है 1 है आपका। ठीक है 1, तो इसको भी 4 बना लो, तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बनेगा 5:1, और ये हो जाएगा आपका 4 × 2 8:4। देखो 5 से 8 और 1 से 4 मतलब 3 का डिफरेंस आया, और 3 किसका है 16, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/3। तो उसकी डॉटर की एज क्या थी 1, 1 की वैल्यू 16/3 है। तो आफ्टर 8 years मतलब प्रेजेंट क्या हो जाएगी 40/3, और 40/3 ऑप्शन डी 13.33 आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years इज 756, के 2 साल के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 756 रुपए है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो आपका 720 रुपए है। अगर 2 साल का ऐसा ही 720 रुपए है तो मतलब 1 साल का कितना होगा 360, तो दूसरे साल में भी 360 तो मिला ही होगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है 36 का। तो मतलब पहले साल के ब्याज के ऊपर ब्याज, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट क्या है 36, और वो कितने परसेंट है 10%। तो जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 10% होगा, वो प्रिंसिपल का 10% होगा। तो प्रिंसिपल क्या बन गया आपका 3600 बन गया, प्रिंसिपल क्या बन गया 3600। इफ द सम इज इन्वेस्टेड सच दैट एसआई इज 1296, के अब जो एसआई है वो 1296 है इन 200। उसके बाद नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आर इंटू टी, तो आर स्क्वायर के इक्वल। 20 से 20 कैंसिल, ये 36 का स्क्वायर है, पूरा 36 आ गया। तो आर स्क्वायर 36 के इक्वल है, तो आर की वैल्यू क्या होगी 6, टाइम है तो पॉजिटिव ही लेंगे। वैसे तो स्क्वायर के साथ 2 वैल्यूज आती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो बट यहां हम पॉजिटिव लेंगे, तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। ए बी एंड सी जॉइंटली स्टार्ट ए बिजनेस वेंचर विद एग्रीमेंट ऑफ 13,000 for 6 months and B 16,800 for 5 months and C 20,000 for 3 months। 20,000 for 3 months, ये आपका A, B और C का पैसा आ गया। अब यहां से अगर हम इनका रेशियो कैलकुलेट करते हैं, देखो रेशियो के लिए मैं बात करूं 20 से 20 कैंसिल, और ये 20 कैंसिल। 5 से डिवाइड करो, 5 इसको पूरा पूरा 100 पे डिवाइड करेगा। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इसको कितने पे डिवाइड करेगा आपका, सॉरी 5 से डिवाइड करना है 2 से नहीं, एक सेकेंड, ठीक है 5 से डिवाइड करेंगे तो पहले 2 पे और फिर 8 पे डिवाइड करेगा, 6 पे डिवाइड करेगा, सॉरी 130 है तो 6 पे डिवाइड करेगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है 26। उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका 6 से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड करो, पहले 5 पे डिवाइड करेगा, उसके बाद 6 पे डिवाइड करेगा, ठीक है 3 से डिवाइड किया 2 पे डिवाइड करेगा। चलो जी यहां तक तो डिवाइड हो गया हमारा। उसके बाद 4 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है 4 से डिवाइड करो, इसको 13 पे, इसको 14 पे, ठीक है
और इसको यहां बचेगा आपका 10 ही बचेगा, एक सेकेंड, क्योंकि 3 से डिवाइड किया था तब 5 से डिवाइड किया था, तो ये 40 बचेगा हमारा, तो 8। हाँ, तो फाइनल रेशो जो आपका आ गया वो 13, 14 और 10 का आ गया। फाइनल रेशो क्या बन गया हमारा? 13, 14 और 10 का रेशो बन गया। तो अब उसके बाद उसने आगे क्या बोला था? द प्रॉफिट अर्न वाज 14,800 कैलकुलेटेड द शेयर्स ऑफ बी। देखो, अब उसके बाद उसने पहले एक चीज और बोली थी क्वेश्चन में, एक चीज और बोली थी कि जो हमारा ए है वो 5% ले रहा है वर्किंग पार्टनर होने के लिए। तो टोटल जो प्रॉफिट है इसका 10% मैं कैलकुलेट करूं तो 10% क्या होगा? 1480 रुपए होगा। और 2 से डिवाइड कर दें तो मतलब 5% 740। इसमें से 740 माइनस कर दो तो हम कह सकते हैं कि जो 37 यूनिट की वैल्यू है वो आपकी 14,060 रुपए आ जाएगी। 14,060 कितनी आ गई? 14,060। तो मतलब 37 यूनिट की वैल्यू आ गई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करें। पहले तो 3 पे डिवाइड करेगा, ठीक है, 3 पे डिवाइड करेगा, उसके बाद 29, फिर 6, फिर 8, फिर आपका डिवाइड करेगा 8 पे, फिर डिवाइड करेगा 8 पे, तो इंटू 380, इंटू 380, 8 गुना 4 32। तो ऑप्शन बी, क्योंकि देखो जब 8 इंटू 4 मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 आना चाहिए, और 2 किस में आ रहा है? सिर्फ ऑप्शन बी में आ रहा है। यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ए लैपटॉप कॉस्ट 15 टाइम्स एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ ए माउस। कि जो लैपटॉप का प्राइस है वो माउस के प्राइस का कितना है? 15 टाइम्स है, ठीक है। ऑन ईच लैपटॉप देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 25%। और लैपटॉप के ऊपर क्या होता है? 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। while the total profit on selling a mouse and a laptop is 30%। और जो माउस और लैपटॉप के ऊपर जो टोटल प्रॉफिट होता है वो आपका 30% होता है। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 2100 ऑन सेलिंग द माउस देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए लैपटॉप। तो लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है कि जो लैपटॉप का प्राइस है ना वो 15 टाइम्स है किसका? माउस के प्राइस का। अगर हम कहें कि जो माउस का प्राइस है वो आपका एक्स है, तो जो लैपटॉप है उसका प्राइस अपने आप आपका क्या आ जाएगा? 15x आ जाएगा, ठीक है। वो कितना आ जाएगा आपका? 15x आ जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें ऑन ईच लैपटॉप देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 25%। और लैपटॉप के ऊपर क्या हुआ है? उसको आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो 25% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। टोटल और उसके बाद while the total profit on selling a mouse and a laptop is 30%, ठीक है। अगर दोनों को एक साथ कंबाइन करें तो 16x, और इसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ वो 30% हुआ। 30% मतलब 4.8। तो मतलब यहां से जो टोटल सेलिंग प्राइस बना वो 20.8 बनेगा, 20.8 बनेगा, ठीक है। और इसके ऊपर अगर हम प्रॉफिट लेते हैं 25%, तो ये बनता है 3.75% प्रॉफिट। ये कितना बनता है? 3.75। यहां से कितना मिला था? 4.80। यहां से कितना मिला था? 4.80, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसको सेल किया गया था यहां से जो प्रॉफिट हुआ था वो 1.05 का प्रॉफिट हुआ था। यहां से जो प्रॉफिट होगा आपका वो कितने का होगा? 1.05 का। या पहले आप इसको पूरा, अगर इसका सेलिंग प्राइस लिखना है तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3 18, 18.75x, ठीक है। ये आपका कितना आ जाएगा? 18.75x। आई होप यहां तक सब बच्चों को क्लियर होगा। तो अब यहां से अगर सेलिंग प्राइस का इसका माउस का सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा आपका 2.05। क्योंकि अभी भी मैंने देखो आपको बताया था कि 4.80 और 3.75 इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो 1.05 होगा, ये भी बताया था आपको, ठीक है। तो माउस का सेलिंग प्राइस आ गया हमारे पास 2.05। तो अब सीपी आपके पास है, एसपी आपके पास है, तो यहां से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट कितना हुआ? वैसे तो 1.05 का प्रॉफिट हुआ, वही आपका 2100 के इक्वल है एक्स। तो यहां से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 105 और 10 ऊपर चला जाएगा। देखो 21 से डिवाइड करो 5 और ये 100, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 200 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 200।
तो लैपटॉप का प्राइस पूछा था 15 इंटू 200 तो 30,000 ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। सीधी सीधी कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, एन अलॉय ए इज फाउंड बाय मिक्सिंग गोल्ड एंड सिल्वर इन द रेशियो 2:1, ठीक है। अनदर अलॉय बी इज फाउंड बाय मिक्सिंग सिल्वर एंड प्लैटिनम इन द रेशियो 3:4, ठीक है। एंड अलॉय सी इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग अलॉयज ए एंड बी इन द रेशियो in a certain ratio such that the ratio of gold and platinum in alloy C is 5:6. Which of the following correctly represent the share of silver in the alloy C? ये क्वेश्चन अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, देखिए। अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ए की बात करूं तो ए में मेरा गोल्ड है और सिल्वर है, और गोल्ड और सिल्वर का रेशो क्या है, 2:1 है। अगर ए में बात करें तो गोल्ड और सिल्वर का रेशो क्या है आपका, 2:1 है। अगर हम बी में बात करें, तो बी में आपका सिल्वर और प्लैटिनम है, इसमें जो रेशो है वो 3:4 है, इसमें जो रेशो है वो कितना है, 3:4 है, ठीक है। तो पहले तो क्या करता हूं, मैं दोनों की यूनिट को सेम कर देता हूं, ठीक है। ये 7 है और ये 3 है, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 14 और 7 बन जाएगा, ठीक है। मान लो ये 14x और ये 7x, ठीक है। इसको करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y और 12y, 9y और 12y। आई होप ये सबको क्लियर होगा, ठीक है। यहां तक सब बच्चों को क्लियर होगा। अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि अब हमारे पास जो थर्ड एलॉय है उसमें जो रेशो दे रखा है वो गोल्ड और प्लैटिनम का रेशो दे रखा है। वो रेशो किसका है, गोल्ड और प्लैटिनम का। अब मेरे पास गोल्ड कितना है, 14x है, प्लैटिनम कितना है, 12y। अगर मैं इन दोनों का रेशो लूं 14x और 12y, तो इनका रेशो मेरा 5:6 आ रहा है। 6 इसको 2 पे डिवाइड करता है, 2 इसको 7 पे डिवाइड करता है, तो x और y का जो रेशो आ गया ना वो मेरा 5/7 आ गया। x और y का जो मेरा रेशो आता है वो कितना आता है, 5/7 आता है। कितना आता है, 5/7 आता है, ठीक है। अब देखो उसने क्या पूछा था, सिल्वर पूछा था। सिल्वर इसमें अगर मैं x की वैल्यू 5 रखता हूं तो 7 × 5 35 प्लस, ठीक है, और y की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो 63, तो ये 5 + 3 8 3 98, और 98 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन ऐसा मिल रहा है क्योंकि पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। The price of two articles are in the ratio 3:4. If the price of the first article be increased by 10%, then that of second price by 4. पहले को 10% और दूसरे को 4 से इंक्रीज किया गया। The original ratio remains the same. The original price of the second article. देखो पहले का अगर 3 है तो दूसरे का कितना है, 4। राउंड डिजिट में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ना इनके पीछे 0 लगा दो, परसेंटेज कैलकुलेट करना। इसका 10% कैलकुलेट किया तो ये बनता है 30। अब देखो, अब मुझे रेशो दोबारा से यही चाहिए 3:4, तो ये 3 किसके इक्वल है, 33, तो यहाँ पे 44 आना चाहिए, ठीक है। तो वैसे भी देखो बाय डिफॉल्ट 4 ही इंक्रीज हुआ था तो 40। बाय ऑप्शन भी इस क्वेश्चन को साथ के साथ कर सकते थे, बाय ऑप्शन भी बहुत इजीली ये क्वेश्चन किया जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज एज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वर्कर्स इन ए फैक्ट्री इज 20 ईयर्स, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द 12 चिल्ड्रन का एवरेज एज कितना है, 12, एंड द एवरेज एज ऑफ वुमेन इज 26, और सबका एवरेज कितना था, 20। लगा दो एलिगेशन। क्या करना है, कुछ नहीं करना, एलिगेशन लगा देंगे। 26 - 26 और ये कितना हो जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 12। अगर मैं यहां से रेशियो की बात करूं तो मेरा रेशियो बना है 1:2, क्योंकि 6 से ही डिवाइड हो जाएगा सीधा सा, 1:2, ठीक है। अगर 12 बच्चे हैं तो वोमेन्स कितने हैं, उससे डबल 24। उसके बाद कह रहा है कि 9 अगर आपके अनमैरिड हैं, मैरिड हैं
तो 15 और 9 24 होता है, तो 15 क्या है आपके आंसर है, 15 आपका क्या होगा आंसर। अनमैरिड कितने हैं, 15 है। आई होप सबको क्लियर होगा ये। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 5 पार्ट्स ऑफ सिरप। यहां से अगर मैं सिरप और वाटर की बात करूं तो ये मेरा 5:3 बनता है। कितना बनता है, 5:3 बनता है। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विद वाटर सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ। हाफ मतलब 1:1, मतलब 1:1। अब ऐसे क्वेश्चनों में देखो उसने साफ साफ बोला है कि जितना निकाला गया उतना ही ऐड किया गया, तो टोटल जो क्वांटिटी होगी वो आपकी सेम होगी। तो इसको 2 सॉरी ये 2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 4। इसको मत देखो, तो 5 से 4 हो गया, 1 निकाला गया कितने में से, 5 में से, 1/5। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें कुछ क्वेश्चनों में वो क्वांटिटी मेंशन भी करता है कि मैंने 9 लीटर मिक्सचर निकाला और फिर 9 लीटर वाटर ही ऐड कर दिया। ये कंसेप्ट सब में अप्लाई होगा कि जो बाद में ऐड किया गया था ना उसको क्वेश्चन से हटा दो, सीधा सा आंसर आ जाएगा आपका सिंगल स्टेप में। ठीक है। A train starts from station A and proceeds towards station B at a speed of 96 km per hour. 45 minutes later, another train starts from the station B and proceeds towards station A at 100 km per hour. If the distance between the two stations is 464 km, at what distance from station A will the two trains meet? ठीक है, देखो ये डिस्टेंस कितना है आपका 464 है। एक ट्रेन ए से चली 96 की स्पीड के साथ। सबसे पहले तो ये देखो इस ट्रेन ने 45 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर किया, तो ये 3 और ये 4 से डिवाइड करेंगे इसको, ये डिवाइड करेगा 24 पे, मतलब इसने 72 किलोमीटर का डिस्टेंस तो कवर कर लिया था। इतना टोटल में से 72 तो इसने कवर कर लिया था। अगर मैं इसमें से 72 माइनस कर दूं, ठीक है, इसमें से 72 माइनस कर दूं, देखो कितना आएगा, 4 में से 2 गया 2, उसके बाद 16 9 392। अब ये जो डिस्टेंस है 392, ये दोनों ने सेम टाइम पर चलना शुरू किया। सेम टाइम पर चलना शुरू किया, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड हो जाएगी इनटू टाइम। तो इसको पूरा पूरा 2 पे डिवाइड कर रहा है कि मतलब चलने के 2 घंटे के बाद वो दोनों ट्रेन मिलने वाली हैं। चलने के 2 घंटे के बाद दोनों ट्रेन मिलेंगी। जो ट्रेन बी से चली थी उसकी स्पीड थी 100 किलोमीटर पर आवर, तो मैं कह सकता हूं कि 2 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। जो ट्रेन यहां से चली उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 200 किलोमीटर। कितने में से, 464 में से 200 माइनस कर दो तो ए की तरफ से कितना बचेगा, 264। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। ए कैन डू ए वर्क इन 15 डेज, कि ए किसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करता है। इफ दे वर्क टुगेदर ऑन इट फॉर 4 डेज देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट। तो काम कितना बचा हुआ था, देखो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60। एलसीएम कितना होगा 60। एफिशिएंसी 4 और 3, तो 7 इंटू 4, इन्होंने 28 वर्क कर दिया। 7 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, 28 काम कर दिए। काम कितने बचे, 32 आउट ऑफ 60। 4 से डिवाइड करो, 8/15 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने टाइम एंड वर्क की क्लास देख रखी है मेरी, वो इसको बिना पेन पेपर कर देंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट ए स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर द एवरी करेक्ट आंसर एंड लूज 0.5 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ए स्टूडेंट अटेम्प्ट ऑल 100 क्वेश्चन। उसने सभी के सभी 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर हम मान लेते हैं कि x क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए और एक क्वेश्चन के लिए उसने 4 नंबर ले लिए, तो 100 माइनस x, ये क्वेश्चन उसके गलत हुए और हर गलत के लिए उसका हाफ नंबर कटा, तो मतलब इतने नंबर माइनस हुए उसके, और टोटल किसके इक्वल आ गया, 310 के इक्वल आ गया। ये क्वेश्चन पहले भी मैं 2-3 बार करवा चुका हूं, अलग अलग मॉक में बहुत बार आ चुका है, आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ठीक है, तो ये कितना मिलेगा 4x, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस 0.5x इज इक्वल टू 310। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें तो 4.5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 360 डिवाइड बाय 45 और 10 ऊपर चला जाएगा। अगर डायरेक्ट नजर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आप 5 से डिवाइड करते हो 2 और 9 इसको 40 पे डिवाइड करेगा, 40 इंटू 2 80,
उसने सही कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? 80 क्वेश्चन उसने सही अटेम्प्ट किए थे। 2 taps T1 and T2 can fill a tank in 2 and 3 hours। देखो, एक 2 घंटे में और दूसरी 3 घंटे में, यहीं से एलसीएम ले लो, एलसीएम 6, इसके एफिशिएंसी 3 और इसके एफिशिएंसी 2। If both the taps are open together, the tank get filled in। तो 6 by 5, 6 by 5 तो 1 by 5। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। सीधा सा क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फॉर ए चैरिटी शो द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड वाज 240। 240 टिकट बेची गई। हाफ ऑफ द टिकट, हाफ मतलब 120 टिकट सेल की गई, 50 रुपीज फॉर ईच। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6000 रुपए, 6000 रुपए, ठीक है। एंड 1/3, इसका 1/3 तो कितना हो जाएगा? 80 टिकट्स हो जाएंगी। वर सोल्ड फॉर 25, 25 अठा 200, 2000 रुपए आपके ये आ गए, ठीक है। एंड 1/10 एट 1/10 मतलब इसकी 24 टिकट्स एज 10, तो ये आ गया आपका 240। कितना आ गया? 240 आ गया। 200 224 बची हैं और 14 टिकट बची हुई हैं, तो इंटू 5 सॉरी 16 टिकट बची हुई, 240 थे ना, 16 बची हुई है, तो 80 ये हो गई 320। तो 8320 रुपए टोटल उसने अर्न किए। 8320, ऑप्शन ए 8320, 8320। जैसे जैसे स्टेटमेंट पढ़ते हो क्वेश्चन को साथ के साथ सोल्व करते हुए चलो। तो जी इसमें तो उसने सिंपल सा कैलकुलेशन का ही पार्ट दे दिया आपने को। 125 प्लस 169 माइनस 284 प्लस 84। देखो, अगर इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस लेंगे तो 200 आएगा। इनको ऐड कर लेते हैं। 9 प्लस 5 14, 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9, तो 294। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाता है? 10 आ जाता है, 294। तो ये कितना बनेगा आपका? 94 बचेगा। कितना बचेगा? 94 बचेगा। और प्लस 720, इसको ऐड ही कर लेते हैं। 4 9 प्लस 2 11 8, और इसमें से 324 माइनस करेंगे तो जो ये होगा हमारा 0 9, और फिर 7 में से 6 क्या 3, 690। 7 का क्यूब क्या होता है आपका? 343 प्लस 147, 400 प्लस ये हो जाएगा आपका 690, ये बनेगा 1590, 390 490 हो जाएगा इंटू 30, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 360, ये आपका 8, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, 368, 8 बचेगा। यहां से आपका, यहां से आपका 8 बचेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब सिर्फ कैलकुलेट ही करना है, तो कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आप कर लेंगे, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा यहां तक। चलो उसके बाद बढ़ते हैं आगे। A sum of money is divided 160 males and some female, ठीक है। Among 160 males and some females in the ratio 16:21, individual each man get 4 and each female get 3. The number of females is, तो यहाँ पे ये T4 तो नहीं होगा शायद, ये T और Z, ये ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये कुछ टाइपिंग एरर ही है, ये टाइपिंग एरर है एक बार, बट फिर भी इसकी स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं। स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं इसकी, कुछ और एरर ना हो इसमें। हाँ जी, ये T और Z नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर हम कहें कि नंबर ऑफ मेल्स इतने M है और इनको 4 रुपीज मिले, नंबर ऑफ फीमेल को 3 रुपीज मिले, और इनका जो रेशो है वो 16:21 है। वो कितना है? 16:21। ये 4 पे डिवाइड करेगा, ये 7 पे, ठीक है। और ये इसमें कुछ नंबर में गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से मेल और फीमेल का रेशो तो 7:11 आ रहा है, वो उसको डिवाइड करेगा, वो इसको डिवाइड करेगा नहीं। सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग 160 मेल्स एंड सम फीमेल इन द रेशियो 16:21, इंडिविजुअल ईच मेल गेट 4 and a female get 3 rupees, the number of female।
जो टोटल पैसा डिवाइड किया गया था वो हमारा इस रेशियो में था, ठीक है। तो 1 से यही है, सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग males and females in the ratio 16:21. Individually, each man gets 4 and female get 3. The number of males is 160 मेल्स है, तो फीमेल हमें कैलकुलेट करने हैं, तो ये 160 मेल्स ही होगा, ठीक है। सम 160 मेल्स, अगर हम करते हैं कि 160 मेल्स को कितना मिला 4 के हिसाब से, इनको मिला अगर हमारा 3 के हिसाब से, तो ये हो जाएगा आपका 16:21। ये इसको 4 पे डिवाइड करेगा, ये इसको 7 पे, और ये इसको 40 पे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 इंटू 7, ठीक है, 280। तो टोटल 160 मेल है और 280 फीमेल है, ठीक है। ऑप्शन तो ध्यान ही नहीं दिए थे हमने, ये बस यहाँ पे 160 मेल्स आएगा, टोटल नहीं है, 160 मेल्स है, ठीक है। आई होप सबको क्लियर होगा ये। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। आई होप सब बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। Hello everyone, welcome to this session by Gyan. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. Guys, so we are up to the English section of this mock now. एक बार ट्राई करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस का क्या ख्याल था। Sentences are given in the blanks, इनको आपको appropriate words से fill करना है, और ये रहा आपका sentence. Dash your instructions, we have closed your bank account. कहता मतलब होना चाहिए आपकी इंस्ट्रक्शंस के अनुसार हमने आपका बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया है। In lieu of, with regard to, in accordance with या on account of, तो it is in accordance with your instructions we have closed your bank account, followed by dash she is clever, she often makes mistakes. कहता वो अक्सर मिस्टेक्स करती है और क्लेवर है, ये दोनों ऑपोजिट चल रहे हैं। जब ऐसा कुछ गाइज आपको ऑपोजिट मिल जाए तो आपको यहां पर भी कुछ ऐसा करेक्टर लगाना जो ऑपोजिट का काम करे, जैसे ऑल्दो शी इज क्लेवर शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स, फॉलोड बाय आउट ऑफ द 4 alternatives choose the one which best expresses the meaning of the word given in bold. Illicit, immoral, illegal, ineligible, illegible. पहली बात तो भाई इसी में एरर है, it should be illicit. चलिए, illicit is called illegal, तो आंसर इज बी, बॉय। नेक्स्ट आपको बताना है इनका मीनिंग क्या है। फ्लेयर का मतलब होता है आपकी वो टेंडेंसी जिससे आप कोई भी काम बिना मुसीबत के कर सकते हो, मतलब आप ये काम कर सकते हैं। सो मोर लाइक टैलेंट हो गया, यू आर एबल इनफ कि आप ये काम कर पाए। सो यहां से फ्लेयर का एग्जैक्ट मतलब क्या हो जाता है, समथिंग विच इज कॉल्ड टैलेंट। अब देखते हैं जरा निगर्डली। निगर्ड इज अ मीजर, जो कंजूस होता है ना उसको बोला जाता है निगर्ड। ऑपोजिट बताना है, सो यहां पर लाइकली, लैविशली, ऑब्वियसली एक्स्ट्रावेजेंट, लैविश। नेक्स्ट फिर से आपको ऑपोजिट बताना है, मेलोडियस। मेलोडियस का मतलब बहुत सुरीला होता है, उसका ऑपोजिट क्या हो गया, ट्यूनलेस, मतलब कोई ट्यून नहीं बन रही है। आंसर इज कॉल्ड ट्यूनलेस। अब यहां से आपको एक चीज पता लगी, ये डायरेक्ट ऑपोजिट है, थोड़े से इजी हो जाते हैं, लेकिन जब इनडायरेक्ट आते हैं तो तंग करते हैं। अब इन क्वेश्चंस में आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी कि दिस इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है यहां पर। एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद वंस हेल्थ, हेल्थ की प्रीऑक्यूपेशन एक्सेसिव हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोकॉन्ड्रिया, यस। मलीज, नो। डिसअफेक्टेड, नो। मलिंगर, नो। The answer comes out to be hypochondria, followed by the worship of idols or image. वो कहते हैं ना वो जो मूर्तियों की पूजा करना is called idols है, idolatry. Choose the alternate which meaning of the idiom. हाँ, तो throw in the towel का मतलब क्या होता है कि भाई आपने सक्सेस लिया है, डिफीट किया है, आप डिफीट स्वीकार करते हैं। वो जो है ना रुमाल फेंक देना, कहता भी हम डिफीट मतलब हार मानते हैं, इज कॉल्ड एक्नॉलेज डिफीट। नेक्स्ट सिलेक्ट द करेक्ट और प्रेफर्ड स्पेलिंग फॉर ईच ऑफ दीज कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड्स। सर्किटियस, क्लेयरवॉयंट, शिवलरी, कैवलकेड, राइट। अब यहां पर देखते हैं आप कितना है,
अब अकॉर्डिंगली यहां पर इतना ध्यान रखना है कि आपको मिसस्पेल्ड वर्ड बताना है. सो द मिसस्पेल्ड वर्ड इज क्लेयरवॉयंट, फॉलोड बाय ये क्या है आपके पास, हाँ, बोल्ड पार्ट का जो आपको एग्जैक्टली मतलब बताना है जो सिमिलर हो. अ रप्चर इन द रिलेशनशिप ऑफ टू ब्रदर इज क्वाइट एपरेंट. हो जाता है मतलब ब्रेक हो जाता है रिलेशनशिप. डैमेज तो क्या होगा, ब्रीच, कोई एग्रीमेंट तो है नहीं, गैप तो फिर नहीं होगा. तो आंसर क्या हो जाता है कि वो जो आपका रप्चर है उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो गया, ब्रेक हो गया मतलब रिलेशनशिप, और वो लाजमी है, एपरेंट है. अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन हॉर्समैनशिप, एक पर्सन जो स्किल्ड है किसमें, हॉर्समैनशिप में. अभी हॉर्समैनशिप की बात हो रही है तो उसको बोलते हैं इक्वेस्ट्रियन. इक्वेस्ट्रियन यहां क्या है, यू हैव टू फाइंड द एरर. यू कैन नॉट विदड्रॉ ऑल योर मनी अंटिल यू गिव अ प्रायर नोटिस. ये गैप है, अ इज फॉर नोटिस. हाँ, तो आप अपना सारा पैसा नहीं निकाल सकते हैं. अब सारा पैसा का मतलब योर मनी हो गया, तो ऑल लगाने की जरूरत नहीं है. बट ये कंडीशन लगा दी है, अनलेस यू गिव अ प्रायर नोटिस. ये है आपके पास एक रीअरेंजमेंट. अभी रीअरेंजमेंट देखते हैं. फर्स्ट और लास्ट इसमें फिक्स्ड होता है, ठीक है. क्वेश्चन सेज वी आर स्टिल इन द केन्जिक एरा, एज ऑफ मैमल्स की बात कर रहा है वो. आपको इसको अरेंज करना है, राइट. अब अपने पास स्टार्ट करते हैं ऑप्शन से. एक बार इसको साइड करूं, ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं. तो इट सेज वी आर स्टिल इन दी कैनोजिक इरा, एज ऑफ मैमल्स, और इन 100, नहीं ये तो होगा नहीं. अच्छा, विल मैमल्स वन, नहीं ये भी नहीं होगा. द ग्रीक आइस एज एंड द टाइम सिंस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इट, हो सकता है नो वन कैन. ये देखो जी, यहां से क्या बोल रहा है, ग्रीक आइस एज. ऑप्शन के अकॉर्डिंग पी और आर ही हो सकते हैं. पी तो हम वैसे काट चुके हैं, बचता ही आ रहा है, मैं ये चेक नहीं कर रहा हूं इसको. तो कहता सेकंड सेंटेंस इज आर, कहता ग्रीक आइस एज और जो टाइम है सिंस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इट, क्योंकि वो पार्ट फॉर्म करता है किसका, एज ऑफ मैमल्स का. तो ये दोनों उसके पार्ट है, तो आर से स्टार्ट हो जाएगा जी. आर के बाद या तो पी है या एस है. अगर आर के बाद एस लगा तो नो वन कैन टेल. अरे वो बता तो रहा है, तो एस तो सॉरी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. आर के बाद पी लगाए. क्या मैमल्स वन वंडर्स कंटिन्यू टू बी अर्थ लीडिंग. अब देखो यहां पर क्या हो, ग्रेट आई से जो टाइम ऐसा है, ठीक है, वो मैमल्स की बात कर रहा है, तो बचता ही पी है. तो आंसर इज इरेडिकेशन मेथड से सी. यहां पे क्या है, ही हैज रिसीव्ड, आपको इडियम फ्रेज बताना है. एल्बो ग्रीस की बात कर रहा है. एल्बो ग्रीस का मतलब होता है ग्रीसिंग, मतलब मेहनत करना, राइट. सो यू आर टॉकिंग अबाउट द हार्ड वर्क, फॉलोड बाय, ओह देयर वी गो. सो आई होप यू एंजॉयड इट, आपको समझ आया है. ऑल द बेस्ट फॉर योर फर्दर मार्क्स. थैंक यू.